السلام علیکم جی، میں ہوں مکی شاہ گجراتیہ اور آج میں اپنے بڑے پیارے نائس بھائی جان جن کے ساتھ میرا روحانی بھی تعلق ہے اور سادات کی عزت ایک علیحدہ ہے کہ وہ کرتے ہیں، ان کی گریٹنس ہے. میں تو ان کو میں یہ نہیں کہتا کہ جو لوگ اپنی عمر چھوٹی بنانے کے لیے کہتے ہیں نا، مجھے یہ کئی ہیروز کی بات سنی میں نے کہ فلاں کہتا ہے جی میں بہت چھوٹا سا تھا جب بھائی جان کی فلمیں دیکھتا تھا، میں اچھا بھلا تھا، بلکہ میں خود بھی انڈسٹری میں آ چکا تھا. مجھے کیفی صاحب کے گھر کمرہ ملا ہوا تھا، عنایت حسین بٹی صاحب کی میں نے شاگردی شاہنور میں کی تھی، ساری دنیا کو پتہ ہے. سعید رانا صاحب بھی ساتھ تھے. اس زمانے میں بھائی جان ہیرو آتے تھے، بھائی جان کو لوگ عمران خان کہتے تھے، گجرات میں بھی ہر جگہ پہ بھی. اور بھائی جان پتہ چلتا تھا کہ پیارے جوان ہیں. اور بھائی سلطان رئی صاحب کے منہ کی بات ہے کہ سلطان رئی صاحب کہتے تھے کہ اگر میرے بعد کوئی سلطان رئی دوبارہ ہوا انڈسٹری میں تو وہ جہازیب ہوگا. کہ بھائی جان اس طرح کے پورے لاڑے پورے مائی کے لال تھے. اور میرے استادگان جو تھے، کیفی صاحب میرے استاد محترم کے بھائی تھے، تو میں ان پانچوں بھائی تھے، میں پانچوں کو چاچا جی کہتا تھا. تو کیونکہ میرے والد صاحب کے دوست تھے عنایت حسین بٹی صاحب، اور وہ ان کی فلموں میں بلاول، ایکشن، محمد خان، ان کی فلموں میں بھی آئے ہوئے ہیں بھائی جان، کیفی صاحب کی فلموں میں. اور بھائی جان کی میں جتنی باتیں بھی کروں، میں کرتا جاؤں تو دن چڑھ جائے گا اگلا کہ بھائی جان کی ماشاءاللہ اتنی خوبیاں ہیں. اور بھائی جان خوش اخلاق ہیں. بھائی جان میں وہ خوبیاں بھی ہیں جو بڑے لاڑوں میں ہوتی تھیں. جو جیسے کہ میں عنایت حسین بٹی صاحب کے ساتھ ہوتا تھا تو کسی وزیر کے گھر بھی اگر ہم گئے ہیں، شیخ فخر زمان کے گھر ہمارا کھانا تھا ایک دفعہ، مجھے بہت یاد ہے. ورلڈ پنجابی کانگریس کا میں بھی ممبر ہوں، میری بھی ایک پنجابی کی کتاب آ چکی ہوئی ہے مارکیٹ میں. تو میں عنایت حسین بٹی صاحب کے گھر کے ساتھ گیا تھا، ان کے گھر نا بٹی صاحب کے ساتھ. تو دوپہر کا کھانا ہمارا ان کی طرف تھا، کیونکہ وہ پیچھے سے جلال پور جٹاں کے بھی تھے، تو ابا جی کو جانتے تھے. اور وہ کہتے ہوتے تھے کہ جو اگر مومدی پور میں کوئی نام نشان ہے نا کسی چیز کا تو وہ رضا شاہ جی کا امام بارگاہ ہے. بہت مطلب 8-9 منزلیں ہیں اس کی، اونچا امام بارگاہ. اور ارد گرد کے سینکڑوں گھر جو ہیں ان کے ایڈریسوں پہ لکھا ہوتا تھا نزد امام بارگاہ رضا شاہ. وہ بندے کہ بھائی جان میں نے وہ خوبیاں دیکھی ہیں کہ شیخ فخر زمان کے گھر سے ہم نکلے تو گاڑی تک وہ چھوڑنے آ رہے ہیں، تو انہوں نے کہا ہے بٹی صاحب کو کہ بٹی صاحب میرا ڈرائیور تو بڑا عاشق ہے، تو فوٹو ایسے مسکراہٹ دی ہے. جو میں مسکراتا ہوں نا میڈم نور جہاں کی وجہ سے اور بٹی صاحب کی وجہ سے اور کیفی صاحب کی وجہ سے اور اسد بخاری صاحب کی وجہ سے، کیونکہ وہ اسی طرح مسکرا کے فوٹو بھی میرے ساتھ دیتے تھے. وہ فوٹو میری گواہ ہے ان چیزوں کی، وہ ہر میرے کلپ میں لگتی ہیں. بھائی جان میں مجھے وہ خوبیاں نظر آئی ہیں. بہت شکریہ. السلام علیکم. مکی شاہ گجراتیہ تو عرف عام میں مشہور ہیں، لیکن میرے چھوٹے بھائی ہیں. ہم عزت احترام کے ناطے شاہ صاحب چونکہ جہاں سے لڑی چل رہی ہے الحمدللہ، تو وہ ہمارے لیے باعث سعادت ہے کہ ہم شاہ صاحب کے ساتھ شانہ بشانہ بیٹھے ہوتے ہیں. یہ ہمارے لیے شرف کی بات ہے. لیکن ہیں میرے چھوٹے بھائی بالکل، تو ان سے مذاق بھی بہت زیادہ ہے. اور ہمیں جب بہت زیادہ کبھی بیٹھے ہوتے ہیں ڈپریسڈ، آپ کو پتہ ہے آج کل تو یہ در و دیوار اس کو بھی ٹینشن ہے، یہ بھی ڈپریسڈ ہے. سو جب آپ اس ماحول میں ہوتے ہیں، اس سینیریو ایسا ہو چکا ہے ہمارے ملک کا، اللہ تعالیٰ رحم فرمائے. لیکن شاہ صاحب کے ساتھ جب ہم بیٹھتے ہیں تو وہ تمام چیزیں بھول کے ہم شاہ صاحب کے ساتھ بیٹھ کے ہنستے ہیں. لگتا ہے جیسے ہم خود بچے ہو گئے، چھوٹا ہو گئے. ہمارے اندر کا جو چھوٹا بچہ ہے جو ہر انسان میں ہوتا ہے، تو وہ شاہ صاحب اسے جگا دیتے ہیں آ کے. تو یہ ان کا بہت بہت شکر ہے، شکر گزار ہوں میں ان کا. اور کل ہم پرسوں گئے تھے کالا شاہ کاکو، بہت اچھا لگا، بہت مزہ آیا. سرور بھٹی صاحب بھی ہمارے ساتھ تھے، اور جہاں تک رسیلہ صاحب بھی ساتھ تھے. بالکل کہ شاہ صاحب ماشاءاللہ، میں کالا شاہ کاکو گیا تو حد نظر، بلکہ کالا شاہ کاکو تو ان کے دادا حضور اور پر دادا حضور یہ سب کی جائیدادیں جو ماشاءاللہ سے ورثے میں ہیں، اور یہ بڑے سنبھال کے رکھ رہے ہیں. کبھی کبھی گڑبڑ کر دیتے ہیں تو ان کو ڈانٹ میری بھی پڑ جاتی ہے، تو وہ ضروری ہے بڑوں کی ڈانٹ. چھوٹے بھائی ہمارے پیار کرتے ہیں اسی لیے ان کا خیال بھی کرتے ہیں.
अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का फजल है, शुक्र हर हालत में करना चाहिए। और मैं शुक्रगुजार हूँ शाह साहब का भी, भट्टी साहब का ख़ास तौर से, और आप सब भाइयों का कि आप लोग मुझे इतना वक्त दे रहे हैं, मेरे लिए इतना ख्याल कर रहे हैं। तो भाईजान का मैं ये कह रहा हूँ कि सुल्तान भाई साहब ने जो भाईजान के बारे में बात की थी भाईजान खुद ही बताएंगे। राई साहब आगा जान हमने प्यार से कहते थे, इंडस्ट्री आगा जी आगा जान, उनके लिए इंतहाई मोहब्बत था, एहतराम आज भी दिलों में है। वो सबसे बहुत प्यार करते थे और हर किसी को ये लगता था जैसे वो उससे बहुत प्यार करते हैं। तो ये उनकी खासियत माशाल्लाह, अल्लाह ताला उनको जवार रहमत में खास जगह अता फरमाए, कि अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए। आमीन। उन्होंने हर स्टूडियो में मसाजिद तामीर फरमाई और उसका बड़ा अजर है, जो नमाजी पढ़ते हैं वो सदक़े जारिया है। तो मैं एक दफ़ा जब मैं मूवीज़ में लाहौर में ज़ाहिर सी बात स्टूडियोज़ यहाँ पे बिज़ी, तो मैंने फ़ोन किया कराची, तो मुझे मेरी वालदा ने कहा कि तुमने अखबार जहाँ देखा? मैंने कहा नहीं, मुझे तो टाइम नहीं मिलता, सोने का टाइम नहीं मिलता, तो ये अखबार जहाँ वगैरह ख़वातीन की चीज़ें मैं कहाँ देखूँगा। कहती नहीं, ख़ास तौर पे मंगवाओ अपने किसी बंदे से और उसको पढ़ो। तो उसमें उन दिनों में फ़िदा अहमद कारदार, मियाँ फ़िदा अहमद कारदार, अल्लाह ताला उनको गरीक रहमत फरमाए, वो बड़े मुहिब वतन जर्नलिस्ट और बहुत प्यार करते थे हम सब से, हमारे पाकिस्तानी सब स्टार से। वो कहते थे मेरे मुल्क का स्टार जो है मेरे लिए बहुत अहमियत का आमिल है, मैं किसी बाहर वाले को पड़ोसी मुल्क के स्टार को नहीं मानता, अपने स्टार को मानता हूँ। और फ़िदा अहमद कारदार इंतहाई मेहनती, जफाकश, और मैं उनकी क्या तारीफ़ करूँ, अल्लाह बस दुआ उनके लिए कर सकता हूँ। तो हमेशा याद रहते हैं वो। तो मुझे याद है कि फ़िदा अहमद कारदार साहब उनका इंटरव्यू लेते थे, वो वीकली पब्लिश्ड होता था। तो मेरी वालदा ने कहा कि इस दफ़ा इस वीक का जो है आप पढ़िएगा। तो मैंने वो अपने मैनेजर से कहा कि आप ले आए जब वो लाया मैंने पढ़ा, तो उसमें वो एक बड़ा अच्छा पैराग्राफ था और ये स्टोरी उनकी चल रही थी वीकली। तो उसमें लिखा था कि मेरे बाद अगर इंडस्ट्री को, ये उनकी बड़ापन है, मैं इस काबिल नहीं था और ना समझता हूँ, सुपर हिट फिल्म है आपके नहीं, लेकिन मैं इस काबिल अपने आप को ना समझता हूँ ना समझूंगा, मैं इस काबिल नहीं हूँ। ये उनकी बड़ापन था। उन्होंने कहा कि मेरे बाद अगर इंडस्ट्री का कोई बार या बोझ संभाल सकता है, ये नहीं कहते कि राही तो एक ही थे, राही साहब एक थे, सुल्तान राही एक, बेग साहब एक, मोहम्मद अली एक, और मेरा मोस्ट फेवरेट वहीद मुराद साहब एक। तो ये एक एक थे सारे। तो दूसरा कभी कोई किसी की जगह नहीं ले सकता। हाँ, ये जरूर उन्होंने कहा था कि आप वो बोझ या बार वो उठा सकते हैं, क्योंकि ये उनके अल्फाज थे। मैं अब अगर अपने मुंह से कह रहा हूँ तो वो सेल्फ प्रेजिंग ना समझी जाए, बल्कि ये वो अल्फाज मैं बयान कर रहा हूँ जो लिखे थे कि मेरे बाद इंडस्ट्री का अगर बोझ उठा सकता है जिसमें मर्दाना वजाहत ये लिखा हुआ, ये तो है, वो जहाज़ेब में है, जहाज़ेब खान। सो जब मैंने पढ़ा तो मुझे तो मतलब अच्छा तो लगा, लेकिन मुझे हुआ कि अब मैं राय साहब की जाके शुक्रिया अदा करूँ। तो पता चला कि वो, मैं एवेन्यू में था, वो शबाब स्टूडियो गांव में शूट कर रहे थे। तो मैंने मैनेजर से कहा कि यहाँ से पैकअप करके हम शबाब जाते हैं। शबाब उन दिनों में काफ़ी दूर था, अभी भी अब पहले लेकिन जल्दी पहुँचते थे, रश कम था, ट्रैफिक, अब ट्रैफिक बहुत है। तो जब शबाब पहुँचे तो वो दूर गांव में शूट कर रहे थे। तो उन्हें पता था कि जहाज़ेब नज़र आया है, ये किसी के फ्लोर पे किसी शूट पे वैसे खामाखाई नहीं जाता, लिहाजा उन्होंने दूर से देखा, उनके पान खाते थे और मुस्कुराए और दूर से कहा कि ज़ेबी मैं वो नहीं आ रहे हैं शॉट दे के। और फिर उसके बाद आका जाना आए, गले मिले। तो मैंने उनके चूँकि बड़े हमारे प्यारे सीनियर मोस्ट, मैंने उनके हल्के से घुटनों को हाथ लगाया बड़े प्यार के साथ कि वो डिस्टर्ब भी ना हो और माइंड भी ना करें, क्योंकि वो बड़े इंकिसारी उनमें थी, बड़ी आजिज़ी थी उनके अंदर, और ऐसी बातों से नाराज भी हो जाया करते थे। तो मैंने पूरा वो
कोशिश यही की कि नाराज़गी में ना हो। मैंने कहा अल्लाह उन्होंने गले लगाया। मैंने कहा आपने जो मेरे लिए अखबार जहाँ में जो प्रेडिक्शन की है मैं इस काबिल तो नहीं हूँ। तो उनके मुंह से एक लफ्ज़ निकला कि ज़ेडी कहते थे, ज़ेडी बेटा ये मैंने हक की बात की है, सच की बात की है, और हक की बात करना जहाद है। ये उनके जवाब था। मैंने उनके माथे पे बोसा लिया, उन्होंने मेरे माथे पे बोसा लिया। मैंने कहा अल्लाह आप कैरी ऑन करें, आपके शॉट तैयार हैं। और मैंने आपको डिस्टर्ब किया, कहने लगे नहीं बेटे चाय खाना। मैंने कहा नहीं बस चाय जज़ाकल्लाह। अब मैं वापस आ गया। ये था वो ग्रेट सुल्तान राही साहब का आगा जान के व्यूज मुझे नाचीज के बारे में। तो ये था। आपसे हमारे छोटे प्यारे से भाई करेंगे जो इस फैट लगाए हुए हैं वो हमें मौका नहीं देते, चश्मा लगाए फैट लगाए। हीरो वो खुद है, हीरो वो खुद बन जाते हैं और हम उनके सामने जीरो होते हैं। ये तो भाईजान का प्यार है, भाईजान का बड़ापन है। और शादिया अब आपसे बात करती हैं कि शादिया को हम दोनों सीनियर है। भाईजान तो बहुत बड़े सीनियर है, मेरे से तो बहुत ज्यादा। मतलब शादिया का मैं भी सीनियर हूँ। शादिया को हमारे साथ कैसा लग रहा है? शादिया क्या कहती हैं? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं बहुत फ़ख्र महसूस कर रही हूँ इस टाइम कि हमारे पाकिस्तान के सुपरस्टार जहांज़ेब सर और मिकी शाह साहब, इनके साथ मैं बैठ कर यहाँ पे बात कर रही हूँ और इनकी बातें सुनी। मुझे बहुत अच्छा लगा कि मेरी अल्लाह से यही दुआ है कि अल्लाह पाक इनको कामयाब करे और जहांज़ेब सर दोबारा इंडस्ट्री में इन हो रहे हैं और मौला पंचन पाक इनको उससे भी ज्यादा और बुलंदियों पे पहुंचाए और कामयाबियां दे। और मिकी शाह साहब भी बहुत अच्छे हैं, बहुत नाइस हैं, बहुत अच्छा लिखते हैं और सब दोस्तों को इकट्ठा रखते हैं। इनकी कोशिश होती है कि जितने भी दोस्त हैं हम इकट्ठे हों और दावतें वगैरह करते हैं और सबको मतलब खुश रखने की कोशिश करते हैं। और सब इनसे खुश भी हैं, ये नहीं, सब इनसे दिल से मिलते हैं क्योंकि इनका दिल साफ है। दिल जिसका इंसान का साफ होना, वो दूसरे भी लोग उसको अच्छे दिल से ही मिलते हैं। जैसे कि मैं बहुत बड़ी फैन हूँ जहांज़ेब सर की। मैंने इनके गाने पे, इनका एक गाना मैं तब छोटी नहीं कहूंगी, टीएज की थी, तो इनका एक गाना टम टमा टम टम्मा मैं छोटी माही लम्मा, तो मैं उसमें बहुत डांस करती थी। इनके गाने इतने अच्छे और माशाल्लाह रीमा जी के साथ, नीली जी के साथ, सहबा के साथ इन्होंने इतना अच्छा काम किया हुआ है माशाल्लाह। नादरा के साथ वो तो मुझसे भी थोड़ी थोड़ी मिलती है नादरा। मैं जब थोड़ी सी टीएज पे थी तो तब मुझे लोग नादरा भी कहते थे, लेकिन अब नहीं कहते, वो अलग बात है। लेकिन ये है कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है अपने सीनियर से मिलके, उनकी बातें सुन के मुझे नॉलेज भी आ रहा है। और बस अल्लाह से यही दुआ करती हूँ कि या रब्बुल आलमीन मुझे भी इनकी तरह कामयाबी देना, इज्जत देना और इनको और इज्जत अता फरमाना। आमीन इलाही आमीन। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया शादिया अब्बास, बहुत शुक्रिया जी। अल्लाह हाफिज। मिकी शाह गुजरातिया चैनल, मिकी शाह ऑफिशियल चैनल देखना ना भूलें, सब्सक्राइब करें जैसे कि भाईजान ने आपको कहा है, शेयर करें, लाइक करें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।